Hello everyone, let's start our today's class. So we are all trying to learn about parts and exponent. In parts and exponent, we all had seen in previous lecture how to represent numbers in scientific notation or standard form. Okay? So we were trying to solve exercise. So let's what are the questions? Let's see what are the questions which are remaining. So in exercise 3B, we were trying to solve some questions. Question number 1 and question number 2. These are very easy questions. So I hope that you must have completed these questions. Now in question number 3, part 1 and part 2, you also have completed. So you have confusion in part 3. आपके पास part 3 में confusion है. So now I am going to tell you solve question number 3, part 3. So in question number 3, part 3, what is given in your question? The question is the distance between sun and earth is 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर. तो sun and earth के बीच की ये distance given है आपके पास. And the distance between earth and moon is 3.84 into 10 raised to power 8 meter. During solar eclipse, moon comes in between earth and sun. At that time, what is the distance between moon and sun? सिंपल क्वेश्चन है. इसमें देखिए जो चीजें गिवन है वो सिर्फ आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट आ रहा सोलर एक्लिप्स का. सो आई थिंक यू ऑल गुड मॉर्निंग. सो आई थिंक यू ऑल हैव लर्न अबाउट सोलर एक्लिप्स. आप लोगों ने देखा वो सोलर एक्लिप्स से क्या होता है और कैसे उसका प्रोसेस है. So in solar eclipse, this is given that moon comes in between earth and sun. So I am going to draw here sun. हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे एक sun ड्रॉ करने जा रहे हैं. ठीक. I am going to draw here sun. एक फ्रेश पेज पे ड्रॉ कर दें ताकि देखने में अच्छा लगे. Yes. So I am going to draw here question number 3, part 3. Solar eclipse का हमें बनाना है. So for that, suppose this is your sun. This is your sun. ठीक है. This is your sun. And this is your earth. ये है आपकी earth. This is your earth. ठीक है. Sun और earth. So for sun, I am going to write here. Sun के लिए ये आपका sun है. ठीक. This is your sun. Sun के लिए हमने यहाँ पे S लिख दिया है. ठीक. ताकि समझने में आसानी है. This is your sun. And this blue part is your earth. This is your earth. ठीक. अब sun और earth के बीच में moon आ जाता है during solar eclipse. So I am going to draw here moon. अब यहाँ पे moon को draw कर दे रहे हैं. This is your moon. This is your moon. ठीक है. This is your moon. So for moon, I am going to write here m. इसके अंदर हमने m लिख दिया है. ठीक. This is given that distance between these object. इन object के बीच में जो distance हैं ये given है हमारे पास. ये हमारे पास given है. तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी distance given है और कितनी है वो distance. So this is given that the distance between sun and earth. sun और earth के बीच में distance given है. So I am going to draw here distance. Suppose this is your sun and this is your earth. This is your earth. So distance between sun and earth, that is 1.496 into 10 raised to power 11. Into 10 raised to power 11. So I am going to write here distance between sun and earth is 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर. ठीक है. मीटर में ये डिस्टेंस है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में. ओके. नाउ ऑल्सो गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. अर्थ एंड मून के बीच में भी डिस्टेंस गिवन है. सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. सो दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ.
मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है डिस्टेंस? वो डिस्टेंस कितनी है? दैट डिस्टेंस इज 3.84, दैट इज 3.84 into 10⁻8 मीटर, 10⁻8 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। तो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस गिवन है, अर्थ एंड सन के बीच की ये डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, ओके। सो वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। अब मून एंड सन के बीच में डिस्टेंस बताना है हमें, तो सिंपल क्वेश्चन है। मून एंड सन के बीच में अगर आप ध्यान से देखिए तो मून और सन के बीच में हम लोग कैसे फाइंड करें? देखिए ये पूरी लेंथ जो बड़ी वाली लेंथ है ये गिवन हमारे पास, ये ग्रीन वाली लेंथ गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। सपोज ये मून है और ये सन है, ठीक है, ये हमें पता करनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। सो इफ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, so how can we find this? We can write that distance between sun and earth minus distance between moon and earth। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। so to find distance between, हमें क्या फाइंड करना है? distance between sun and moon, sun and moon के बीच में डिस्टेंस में फाइंड करना है। तो ये क्या हो, ये क्या डिस्टेंस होगी हमारी? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में। तो सन के लिए हम यहाँ एस लिख दे रहे हैं, है ना, सन। ये हमारा क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में ये डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस, और माइनस डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन, यस, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दीज वैल्यूज। बस सिर्फ हमें इतना ही देखना था, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, मून एंड अर्थ। सो वी हैव ऑल दीज वैल्यूज, हमारे पास ये सभी वैल्यूज हैं। उन सभी वैल्यूज की जो नंबर गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस है 1.496। सो हम राइटिंग है 1.496 into 10⁻11 माइनस डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, दैट इज 3.84 into 10⁻8 मीटर। ठीक है, बोथ दी क्वांटिटीज आर इन मीटर, अभी दोनों ये क्वांटिटीज मीटर में है। दैट मीन्स व्हेन वी सबट्रैक्ट दीज वैल्यूज वी गेट आवर आंसर इन मीटर, हमें वो वैल्यूज मीटर में ही मिलेंगी। सो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए 10⁻8 है और यहाँ पे 10⁻11 है, तो इसको सॉल्व करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, उसी टाइम सॉल्व कर पाएंगे व्हेन वी हैव दिस पार्स ऑफ इक्वल वैल्यू। जब हमें 10⁻⁴ में जो भी लिखा है, जब इनकी वैल्यूज सेम हो जाएंगी तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी केस में कर पाते हैं। तो देखिए मिनिमम पार यहाँ पे 10⁻8 है, तो हम इसमें भी 10⁻8 बनाने की कोशिश करें। ये कैसे बनेगा? 1.496 into, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 10⁻3 into 10⁻8। हमने क्या किया? 10⁻11 को इसको अलग अलग पार्ट कर लिया। क्या किया? 10⁻3 लिख दिया इंटू 10⁻8 ऐसे राइट डाउन कर दिया, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं 11 को 3 + 8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 3.84 into 10⁻8। ठीक है, now what I am doing here, I am taking 10⁻8 कॉमन, 10⁻8 और 10⁻8 को हम कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन मीन्स 1.496 into 10⁻3 यहीं पे रहेगा। ठीक है, और माइनस 3.84, अब आई एम यूजिंग हियर ब्रैकेट into 10⁻8। देखिए 10⁻8 जो ये वैल्यू थी इसको हमने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू हमारी कॉमन थी। कॉमन मीन्स के ब्रैकेट यूज करेंगे
और इस 10⁻⁸ को बाहर लिख देंगे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको एज इट इज ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक, सो नाउ सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। So here is 1.496 into 10⁻³ that means we have to multiply 1.496 into 10⁻³ means 1000 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, here is 3.84 now bracket into 10⁻⁸। ठीक है, now when we multiply 1.496 into 1000 what we get, हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1496 वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 3.84। ठीक है, इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸। ठीक, नाउ सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। पहले इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज हैं इसको सॉल्व करते हैं। सो आप लोग रफ कॉपी में ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। 1496 और 3.84 यहाँ पे हम 0.00 से लगा सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट दिस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस, मल्टीप्लाई हो गया। So here is 10 minus 4 6 9 minus 8 1। now here is 5 minus 3 2, so we can write here 9 4 1 1492.16 1492.16 into 10⁻⁸ into 10⁻⁸। ये हमारा इतना आंसर अभी आया है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट दिस नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1492। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड। दैट मीन्स आई एम शिफ्टिंग दिस पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। So I am putting here 1.492। देखिए 1 2 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया है पॉइंट को, और ये 16 इधर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵ क्योंकि हमने 3 डिजिट ये शिफ्ट किया है, इंटू 10⁻⁸। ये वाला 10⁻⁸। ना देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻⁸, इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 1.49216 into 10⁻⁵, 3 plus 8, that means 10⁻11। so we can write here 1.49216 into 10⁻11 मीटर। वैल्यू किसमें आएगी 11 मीटर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी। दैट इज दिस वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। सन और मून के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा ये क्वेश्चन में ये फिगर बना था, दिस वाज द फिगर इन द केस ऑफ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के केस में ये ऐसे अरेंज होते हैं सन मून एंड अर्थ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर हियर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है और उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 आई विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर part 5 part B, and if time permit then I'll also solve question number 5 part C. So let's solve question number 5 part B. So I'm going to write here question number 5 part B. चलिए देखते हैं question number 5 part B में क्या given है। In question number 5 part B we have to express these numbers in standard form। इनको हमें standard form में लिखना है, and this is given that 9 into 10⁻⁻7 this is divided by ये वैल्यू हमारी है डिवाइड हो रही है बाई 45
into 10 raised to power 3, 45 into 10 raised to power 3, इससे ये डिवाइड हो रही है. So let's solve this question. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So what we do, we'll write these numbers in such a thing. ऐसे लिखेंगे 9 into 10 raised to power -7. दिस इज डिवाइडेड बाई, इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है इस नंबर से. So that means upon 45 into 10 raised to power 3. ठीक है. अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है और वैल्यूज लिखनी है कि कितनी वैल्यू आएगी. सो इसको सॉल्व करते हैं. 9 बन जा 9, 9 5 सा 45. So after solution, what we get here? We get here 1 upon 5. 1 upon 5. And what I do here? हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, in numerator here is 10 raised to power -7. ठीक है. और ये जो डिनोमिनेटर में हमारा 10 raised to power 3 था, इसको हम ले आएंगे ऊपर. वैल्यू ले आ रहे हैं हम ये ऊपर. दैट मीन्स इन न्यूमरेटर में ये वैल्यू लाएंगे तो ये वैल्यू जो पार हमारी प्लस में थी नीचे, ये पार आ जाएगी माइनस में. 10 raised to power -3. ठीक है. जो 10 raised to power ये +3 था नीचे डिनोमिनेटर में, उसको हम ऊपर ला रहे हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 10 raised to power -3. सो सी तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं. So let's solve this question. This is 1 upon 5 into 10. देखिए 10 raised to power -7 into 10 raised to power -3. The base is same, so power will be added here. That means -7 plus -3. पावर्स को हम ये ऐड करेंगे. अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस. So we can write here 1 upon 5 into 10 raised to power -7 -3. So what we get here? 1 upon 5 into 10 raised to power -10. ये वैल्यू हमें मिल गई है, ये वैल्यू हमें मिल गई है. ठीक है. अब देखिए हमें इसको, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि अपॉन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि हमें इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ 1 डिजिट लिखना है और जो भी आए पॉइंट में उस टाइप की वैल्यूज कुछ लिखनी है. तो दैट मीन्स इस 1 upon 5 को थोड़ा सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और पॉइंट में वैल्यूज लिखनी है. सो व्हेन वी सॉल्व 1 upon 5, व्हाट वी गेट? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी. तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर 1 upon 5 into 10 raised to power -10. ये वैल्यू थी हमारी. ठीक. अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आई एम मल्टीप्लाइंग हियर 10. इन न्यूमरेटर आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 10. 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. डिनोमिनेटर में भी हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये 1 into 10 है, 1 into 10 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. वी गेट हियर 10. और ये जो 5 है, यहाँ पे 5 into 10 हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ओनली से 5. ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए हम इसको बता रहे हैं. 10 upon 5. नीचे के जो 10 थे ये हम इसको 10 ही लिख रहने दे रहे हैं. ठीक है. और न्यूमरेटर में ऊपर 10 raised to power -10. इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, तो पहले इससे देख लेते हैं. 10 upon 5. सो वी कैन राइट हेयर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10. हियर वी गेट 10. यहाँ पे हमें नीचे 10 मिल गया है और यहाँ पे ऊपर क्या है 2 है. सो दैट मीन्स वी गेट हेयर आवर वैल्यूज 2 into 10 raised to power ये वाला -10. एंड जो 10 बचा हुआ है इसको हम ऊपर ला रहे हैं. दैट मीन्स इन न्यूमरेटर. सो वी गेट हियर 10 raised to power -1. ये वैल्यू कितने जाएगी? 10 raised to power -1, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में +1 वैल्यू है, पार इसका +1 है. सो इन न्यूमरेटर दिस पार विल बी चेंजेस, its symbol will be changed. So we get here 2 into 10 raised to power. See here base is same and power is different, so power will be added here. That means 10 raised to power -10 plus यहाँ पे -1. ठीक है ना. So अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, so प्लस माइनस माइनस. So when we solve this we get here 2 into 10 raised to power -10 -1. So what we get here
2 इंटू 10⁻⁻11। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर ये फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक हमने यहाँ पे डायरेक्टली 10 से ऐसे मल्टीप्लाई किया है। आप लोग अगर यहाँ इस सिस्टम में समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1/5 को डिवाइड कीजिए। 1/5 को आप डिवाइड करेंगे, 2.0 ठीक है। 1/5 को आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए डिवाइड कीजिए रफ में ऐसे, ये 5 इधर है, यहाँ पे ये 1 है, तो हम ऐसे पॉइंट यूज करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 2 10, 5 2 10, ये कैंसिल ऐसे। दैट मीन्स 1/5 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट वैल्यू हियर 0.2। कितनी वैल्यू आएगी, 0.2। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.2। अब इंटू 10⁻⁻10। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास एक 1 डिजिट होना चाहिए। तो इस दैट मीन्स इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है इस साइड, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो व्हेन वी शिफ्ट पॉइंट दिस साइड, अगर इस साइड शिफ्ट करें पॉइंट तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर सिर्फ देखिए 1 डिजिट हमने शिफ्ट किया है, 2.0 ऐसे लिखा है। हमने सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। वाई, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग दिस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने बताया था कि जब भी लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में लिखेंगे, और ये इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻, ये अब देखिए 10⁻⁻1, 10⁻⁻, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.0 इंटू 10⁻⁻1 और ये -10, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.0 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आर दीज वैल्यूज। तो आप लोग को दोनों में से जो भी मेथड पसंद आए उससे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो इजी है सॉल्व करना। सिर्फ वन बाय वन आप लोग इसको समझ करके सोच करके अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, ये या तो आप ये पार्ट कीजिए या तो ये पार्ट कीजिए, दोनों में से जो भी आपको पसंद है ये दोनों में से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। नाउ सॉल्व, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी उसको सॉल्व करते हैं। Now I am going to erase this. In question number 5 part C, what we have to do? Question number 5 part C, the part is x square into y cube, where we have value of x equal to 24600 and value of y is 0.004। सो बस हमें इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज रख करके देखें, इसको मल्टीप्लाई करने हैं। तो सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर मीन्स वी हैव वैल्यूज है 24600, ठीक, इनका स्क्वायर इंटू वाई क्यूब मीन्स 0.004, इसका स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू है वो आंसर लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करना एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। देखिए 24600 ये वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे 24600 इसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं डेसिमल के फॉर्म में। सो दैट मीन्स अब 24600 है, यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करें तो पॉइंट लगा करके यहाँ से 0 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे इधर साइड। ठीक है, that means from right to left, so I am writing here 2.4600 into 10 into 10 raised to power, देखो 1 2 3 4 into 10 raised to power 4। ठीक है, we can write this ऐसे स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, अब इस पॉइंट को हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, हम इसको 4.0 लिखेंगे। That means I am going to write here 4.0, पॉइंट हम यहाँ 4 के बाद लगाएंगे। That means 1 2 3, तो 10 raised to power -3, 10 raised to power -3 and here is square, क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब हमारा है।
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्यूब में है। ओके, बस हमने इन वैल्यूज को लिख दिए हैं, सिर्फ अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 2.46 यहाँ पे ये 00 हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁴ इसका होल स्क्वायर इंटू 4.0, तो यहाँ से ये पॉइंट में जो 0 है इसको यहाँ से हटा सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ so we have to take cube here, so 2.46 into 10⁻⁴ whole power 2, that means 2.46 इसकी भी पावर 2 है और 2 into 10⁻⁴ इसकी भी पावर 2 है, so that means this we can write this in this manner, 2.46 whole raised to power 2 into 10⁻⁴ इसकी भी होल पावर 2 है, यही है, ठीक है, इंटू 4, यहाँ पे 4 कितनी टाइम्स है, इसकी पावर है 3, इंटू 10⁻⁻³ इसकी होल पावर 3। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 10 की जो पावर है पावर को भी सॉल्व कर लीजिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज लिख दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे। I hope that you all have enjoyed this. Now, if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all.